Dear students, today we are going to start science lecture. Now it is first lesson of science 1, gravitation. What is gravitation? Gravitation means each and every object is attracted by the earth by some force that is called as gravitation. And first it is invented by the scientist Newton. See there, Newton was sitting under a tree, an apple tree. Suddenly an apple falls in front of him. Then he start thinking about that, why apple falls, why it haven't moved upward direction. And he developed a concept of gravitation on the basis of this theory. Later he developed some theory. Before that theory, we'll see about the what is centripetal force, circular motions and everything. See here students, about the circular motion. If any object moves around a certain focus, certain foci, that is called as circular motions. For example, moon revolves around the earth, earth revolves around the sun. These all are circular motions. Fan revolves around an axis, it is a circular motion. Now if any object is a circular motion, there is a force applied towards the center. See, if any object moves in a circular motion, there is some force which is applied on the object, and that force acts towards the center. That force acts towards the center, and this is called as circular motion. Now students, you can see here, there is an object moving in a circular motion. You can see that there is an object see here, this is an object, and this is center of the circular motions object. At this point, its direction of object is this one. At this point, direction of object is this one. At this point, direction of the object is this one. At every point, direction is continuously changing, and you can see here direction of force toward the center. Direction of force is towards the center, and direction of the object and direction of force are perpendicular to each other. ध्यान से देखो, ये फोर्स का डायरेक्शन है और ये ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन है. इनके बीच में देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. मीन्स दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सो देर इज ऑलवेज, आपने 9th में पढ़ा है, वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा. डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा. F for force, S for displacement, cos theta, angle between force and displacement. यहाँ पे एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कितना है? 90 डिग्री है. 90 डिग्री का फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का एंगल है, तो आप समझ सकते हो कि cos 90 कितना होता है? 0. तो F इंटू एस इंटू 0, तो वर्क कितना हो गया? 0 हो गया. तो work at every point is 0. If any object is moving in circular motion, then work applied on that object, work done on that object is 0. Now we are here going to study about the centripetal force. Centripetal means towards the center, center seeking force. The force which is applied towards the center, the force which is applied towards the center is called as centripetal
फोर्स। आप देख सकते हो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है और जो फोर्स का डायरेक्शन है सेंटर की ओर है। बिकॉज ऑफ दैट फोर्स द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन सर्कुलर मोशन। एज सुन एज फोर्स इज रिलीज्ड द ऑब्जेक्ट विल फ्लाई इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल सपोज आप एक धागा से एक पत्थर बांध के घुमा रहे हो सर्कुलर मोशन में, अचानक वो धागा टूट जाता है। तो देखो जैसे यहाँ से ये ब्रेक हुआ ये धागा यहाँ से, तो ये पत्थर सर्कुलर मोशन में नहीं घूमेगा, ये सीधा फ्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से जो डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो हमेशा 90 डिग्री पे होता है। डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज टेंजेंशियल। डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज टेंजेंशियल। टेंजेंशियल का मतलब समझा, हमेशा डायरेक्शन ऑफ फोर्स के 90 डिग्री पे होता है। फोर्स का डायरेक्शन इनवर्ड होता है, इनवर्ड मतलब टुवर्ड्स द सेंटर, और जो ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन है वो सीधा 90 डिग्री पे होता है। हर पॉइंट पे देखो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, एवरी पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इतना समझ में आ गया? सेंट्रीपिटल फोर्स के एग्जांपल्स हैं मून रोटेटिंग अराउंड द अर्थ, प्लैनेट्स रोटेटिंग अराउंड द सन, बिकॉज देयर इज सम फोर्स विच इज अट्रैक्टिंग दैट ऑब्जेक्ट। विदाउट दैट फोर्स दे कैन नॉट रोटेट। किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए सेंटर पे कुछ फोर्स होना चाहिए जो उसको अटैच किए हुए रहता है। जब तक वो फोर्स नहीं होगा कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं हो सकता। मून रोटेट हो रहा है अर्थ के चारों तरफ, दैट मीन्स देयर इज अ सम फोर्स दैट इज इवन यू कैन से ग्रेविटेशनल फोर्स, विच बिकॉज ऑफ दैट मून इज रोटेटिंग अराउंड द अर्थ। अब स्टूडेंट्स इसके बाद हम लोग केपलर्स लॉ देखेंगे। तो एक बार ध्यान से इसको देख लीजिए ग्रेविटेशन का। केपलर्स फर्स्ट लॉ जो है, दिस इज बिकॉज ऑफ ऑर्बिट्स। अब देखो जितने भी प्लैनेट्स होते हैं स्टूडेंट्स, उनका जो ऑर्बिट होता है इलिप्टिकल होता है। इलिप्टिकल क्या होता है? सपोज ध्यान से देखो, ये कोई कोन है, कोन इसी तरह से होता है ना। यदि हम कोन को अक्रॉस कट करेंगे तो सर्कुलर होगा, लेकिन जब हम हॉरिजेंटल कट करेंगे तो सर्कल बनेगा, लेकिन जब हम अक्रॉस कट करेंगे इस तरह से, देखो ध्यान से, तो हमको एक एलिप्स फाइंड होगा। ये दिस इज कॉल्ड एज एलिप्स। तो जो एलिप्स है इसमें दो फोकस पॉइंट होते हैं। एक फोकस पॉइंट को यहाँ पे होता है, एक फोकस पॉइंट यहाँ पे होता है। एलिप्स के लिए फोकस पॉइंट डबल होते हैं। वो दोनों फोकस पॉइंट के कारण आप देख सकते हो यहाँ पे देखो एलिप्स है, यहाँ पर देखो एग्जाम्पल से बताया गया। कोन को देखो इस तरह से कट किया तो सर्कल मिला, इस तरह से कट किया तो हमको एलिप्स मिला। एलिप्स में दो फोकस पॉइंट है, एक F1 एक F2। यू कैन से देयर आर टू फोकी, टू सेंटर्स आर देयर। तो यहाँ पर इसका एक प्रॉपर्टी ये है कि सपोज पॉइंट B यहाँ पर है, पॉइंट A यहाँ पर है, पॉइंट C यहाँ पर है, तो ईच एंड एवरी कंडीशन, जैसे सर्कल में सेंटर से रेडियस इक्वल होता है, हर पॉइंट पे डिस्टेंस सेम होता है, इट इज कॉल्ड एज रेडियस। इन द सेम वे देखो सपोज हम पॉइंट ए लेते हैं, तो F1 इतना डिस्टेंस हो गया, AF2 सपोज AF1 5 सेंटीमीटर है, AF2 3 सेंटीमीटर, 5 + 3 8 हो गया। AF1 + AF2 8 सेंटीमीटर आया। तो आप देखोगे BF1 और BF2 का सम भी 8 सेंटीमीटर ही होगा। CF1 और CF2 भी ऐड करने पर 8 सेंटीमीटर ही आएगा। दैट मीन्स AF1 + AF2 इज ऑलवेज इक्वल टू BF1 + BF2 एंड दिस वन इज ऑल्सो इक्वल टू CF1 + CF2। आप देख सकते हो यहाँ पे। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एलिप्स। स्टूडेंट्स अब हम लोग आते हैं केपलर्स फर्स्ट लॉ। ध्यान से देखो केपलर्स फर्स्ट लॉ, द ऑर्बिट ऑफ planet is an
ellipse with the sun at one of the foci। ये क्या देख रहे हो, ये क्या है, ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट से। सन इज वन ऑफ द फोकी, या तो यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे होगा, तो सर्कुलर नहीं होता है ऑर्बिट प्लैनेट्स का, हमेशा याद रखना। इट इज अ इलिप्स एंड सन इज वन ऑफ द फोकी। दिस इज कॉल्ड एज केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। दिस इज कॉल्ड एज केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब देखो केपलर्स फर्स्ट लॉ समझ में आ गया आपको। नाउ लेट अस सी केपलर्स सेकेंड लॉ। As you know that planets always revolve in elliptical orbit and sun is one of the foci. See here, suppose the planet is somewhere here in AB location. At a certain time, it sweeps an area of ASB. This is the area of swept by the planet, ASB. After certain time, the planets reaches at this position. Planet यहाँ पे पहुँच गया। Now the swept area of the planet is CSD। ये देखो शेडेड पोर्शन है, ये इतना पे सन यहाँ पर, जब प्लैनेट यहाँ पे पहुँचा तो वो सन के साथ कितना एरिया स्वीप कर रहा है, इतना एरिया। कुछ समय बाद प्लैनेट यहाँ पर पहुँच गया। अब इस वक्त इसका कितना है, नाउ दिस टाइम इट्स स्वेप्ट एरिया इज ESF। व्हाट केपलर सेकेंड लॉ shows that each and every time the swept area are same, means in equal time interval। suppose 2 सेकेंड में ये एरिया स्वेप्ट करता है, 2 सेकेंड में ये एरिया स्वेप्ट करता है, 2 सेकेंड में ये एरिया स्वेप्ट करता है। मतलब A से B तक पहुंचने में उसको 2 सेकेंड्स लगते हैं, C से D तक पहुंचने में 2 सेकेंड लगते हैं, E से F तक पहुंचने में 2 सेकेंड लगते हैं। हर बार टाइम इंटरवल सेम है 2 सेकेंड्स, तो जो ये एरिया दिख रही है आपको, ये एरिया भी इक्वल होगी। मीन्स इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया स्वेप्ट करता है प्लैनेट। That means area of ASB, this area, is equal to area of CSD, means this area, is equal to area of ESF, this area. This is Kepler's second law. See here, the line joining the planet and the sun sweeps equal areas in equal time intervals. That is, area ASB is equal to area CSD is equal to area ESF. Understood Kepler's second law? Now let us see Kepler's third law. In Kepler's third law, see very carefully. अभी अभी केपलर सेकेंड लॉ में क्या देखा आपने, कोई प्लैनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व हो रहा है इलिप्टिकल ऑर्बिट में। एक पर्टिकुलर टाइम में वो एक पर्टिकुलर एरिया स्वीप कर रहा है। तो पर्टिकुलर टाइम जो होता है दैट इज कॉल्ड एज पीरियड ऑफ, मीन्स एक रिवॉल्यूशन में जितना टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड एज पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। टाइम टेकन टू रिवॉल्व वन राउंड अराउंड द सन इज कॉल्ड एज पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। व्हाट इज द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन? इट इज 365/1/4 डेज। मतलब जो अर्थ है सन के चारों तरफ एक राउंड कंप्लीट करने में उसको 365.4 डेज लगते हैं। तो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या हो गया, अर्थ का 365.4 डेज। समझ में आ गया पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन? नाउ केपलर्स थर्ड लॉ, द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। Square of period of revolution, suppose period of revolution is T and distance from planet to sun is R. Distance, mean distance actually, mean distance जैसा कि मैंने अभी बताया था, फर्स्ट फोकस सेकेंड AF1 प्लस BF1 इस तरह से, is directly proportional to the cube of the mean distance of planet from the sun.
मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। अब देखो मीन डिस्टेंस क्या होता है। सपोज प्लैनेट मूव कर रहा है, वन टाइम हो गया। मीन डिस्टेंस क्या होता है, सपोज सन यहाँ पर है तो AF1 प्लस BF1 प्लस CF1, सपोज पॉइंट D यहाँ पे है DF1, पॉइंट E यहाँ पे EF1, सभी डिस्टेंस का ऐड करके उसका मीन निकालेंगे। मीन मतलब एवरेज, वो होता है मीन डिस्टेंस। समझ में आया मीन डिस्टेंस? फिर से एक बार मीन डिस्टेंस, सन यहाँ पर है, प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है तो AF1 प्लस BF1 प्लस CF1, सपोज D यहाँ पर है, प्लस DF1 प्लस EF1 प्लस समथिंग एल्स F1, इन सबको ऐड करके उसका मीन निकाल लेंगे। मीन मतलब एवरेज निकाल लेंगे। दैट इज कॉल्ड एज मीन डिस्टेंस। ओके, सो अकॉर्डिंग Kepler's third law, the square of period of revolution around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance of a planet from the sun. Here r is the mean distance। अभी मैंने आपको बताया मीन डिस्टेंस क्या होता है, t is period of revolution। According to Kepler's third law of motion, t square is directly proportional to r cube। t square is directly proportional to r cube। प्रपोर्शंस का साइन हटा के वहाँ पे कांस्टेंट हमने किया तो t square is equal to k into r cube where k is a constant। तो हमने r क्यूब को अपॉन में लिया तो t square r cube अपॉन k। दिस इज कॉल्ड एज Kepler's थर्ड लॉ। अब तक आपने Kepler's के 3 लॉज देख लिए। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। स्टूडेंट्स, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, बहुत ध्यान समझना। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बहुत ध्यान समझना, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स attracts every other objects towards itself with a definite force। Every object in the universe attracts other objects towards itself with a definite force। ओके, कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, हर कोई भी 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते रहते हैं, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल्स law of gravitation, this force of attraction is directly proportional to the masses of the 2 objects and is inversely proportional to the square of distance between them। अब ध्यान समझना, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, सपोज ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है। मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1 इज m1 एंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट 2 इज m2। बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर अट्रैक्टिंग ईच अदर टूवर्ड्स देमसेल्फ। देखो दोनों का फोर्स एक दूसरे की तरफ लग रहा है एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज d। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, प्रोडक्ट ऑफ मासेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द फोर्स, मतलब F इज प्रोपोर्शन टू m1 इंटू m2। Force applied between them is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them, and inversely proportional to the square of distance between them। मतलब F is proportional to m1 into m2, F is proportional to 1 upon d square। ओके स्टूडेंट्स, इन दोनों को एक साथ मिलाओगे तो क्या मिलेगा, F is proportion to m1 into m2 upon d square, m1 into m2 upon d square। अब आप देखिए ध्यान से, फिर से प्रोपोर्शन का साइन रिमूव किया तो उसकी जगह कांस्टेंट g लिया, तो हमको फार्मूला क्या मिला, F इज इक्वल टू g इंटू m1 इंटू m2 अपॉन d square। Here students, G is called universal gravitational constant। universal gravitational constant means पूरे यूनिवर्स में G का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकता, इसका वैल्यू कांस्टेंट रहेगा।
And what is the value of G? It is 6.673 into 10 raised to minus 11 Newton meter square per kg square. What is the value of G? 6.673 into 10 raised to minus 11 Newton meter square per kg square. This is called as universal gravitational constant. फिर से एक बार, universal law of gravitations introduced by the scientist Newton. In the universe, every two objects attracts each other towards themselves by some force. That force is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. इस तरह से आप न्यूटन्स यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन बोल सकते हो. ये दो चीज़ याद रखो, एफ इज प्रपोर्शन टू m1 इंटू m2, एफ इज प्रपोर्शन टू 1/d². दोनों को मिला दिया तो हमको क्या मिला? एफ इज प्रपोर्शन टू m1 इंटू m2/d². अब इतना याद रहेगा तो आप पूरा बोल सकते हो. इसको देख के हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. According to universal law of gravitation, every two objects attracts each other towards themselves by the some force. That applied force is directly proportional to the product of their masses and inversely मतलब upon, and inversely proportional to square of distance between them. That means F is proportional to m1 into m2. F is proportion to 1/d². That means F is proportion to m1 into m2/d². F is equal to G m1 m2/d², where G is called as gravitational constant, or you can say universal gravitational constant, and value of G is 6.673 into 10 raised to minus 11 Newton meter square per kg square. Now suppose we have to get the definition and value of gravitational constant. As we know, F is equal to G into m1 into m2/d². G is equal to F इंटू वट अबाउट G. देखो G का वैल्यू निकालना है तो d² F के साथ ट्रांसफर होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा. m1 इंटू m2 अपॉन में आ गया तो G इज इक्वल टू F इंटू d² अपॉन m1 इंटू m2. सपोज फोर्स इज 1 न्यूटन, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज 1 मीटर एंड मास ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर 1 किलोग्राम. तो 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर स्क्वायर 1 to 1 kg इंटू 1 kg. पूरा वैल्यू क्या आ जाएगा? G आ जाएगा, 1 आ जाएगा. मतलब G इज इक्वल टू F हो जाएगा. G इज इक्वल टू F मतलब डिस्टेंस भी 1 मीटर हो गया. मीटर ये कितना हो गया? मास भी दोनों ऑब्जेक्ट का 1 kg हो गया. तो G और F इक्वल हो जाएंगे. तो हम लोग कैसे इसको डिफाइन करेंगे? देखो यदि G इज इक्वल टू F इंटू 1 मीटर का स्क्वायर अपॉन 1 kg इंटू 1 kg, सब 1 1 1 1 आ जाएगा. तो यू कैन गेट G इज इक्वल टू F. क्या मिला? G इज इक्वल टू F. J इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स. देखो G F के इक्वल हो गया है ना. J इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस ऑफ 1 kg. देखो दोनों का मास m1 m2 1 kg है और दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर है. तो G ग्रेविटेशनल फोर्स किसके इक्वल हो गया? सपोज टू ऑब्जेक्ट 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हैं और दोनों का मास 1 kg है, तो उनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो G के इक्वल लग रहा है. और G कितना होता है? 6.673